Good morning everyone. My name is Vijay Sundar of class 6. Today I am going to represent a story of a greedy lion. Once a lion felt hungry in the forest. He started wandering around in the forest in search of food. Uh, but unfortunately he could not find any food. He was so sad. While returning to his den, he saw a small mouse. When the lion was about to kill it, he saw a deer near his den. While seeing the deer, the lion thought that uh, Respected principal, sir, teachers, and my dear friends. My name is Rudrananjana, standard 6. Today I am going to tell a story. The story about the true friend. Once there were two friends, a squirrel and a puppy. They used to live and play together. The squirrel was very sporty and always won the game. One day it started raining heavily. The squirrel was in high spirits. He started doing antics but suddenly lost his balance and fell in the rainwater. He called his friend the puppy for help. The puppy came to his rescue. The squirrel climbed on its back and So today I'm stand here to say a poem about Independence Day. History is our witness and matters are the gods. We are the displays of gurus and this land is said about. Prevention compassion is our heritage in a humanity. Don't trust neither Hindu nor Muslim. We all are Indian first. Prevention is our ethos and diligence means we place whistle in drums. Our one-seaters say in dreams we end sky of hard work. For us rest in rest, neither Tamil nor Sindhi, we all are Indian first. Thank you, Jain. Good morning everyone. My name is Ashirwad Maran. I am studying class 6. Please pronounce your name properly. Good morning everyone. My name is Ashirwad Maran. I am studying class 6 section B. Today I am going to represent poem. The poem name is The Independence. We are free now. You ask me how. We are independent. No longer are we dependent. Nor are we trapped. Now I see it thanks to those who will be forever lost in our memories. We are having independence, no feelings of vengeance. सूरज की रोशनी ख्वाबों को बनाने में गुजर गई, रात की नींद बच्चों को सुलाने में गुजर गई। जिस घर में मेरे नाम की कोई भी तख्ती नहीं, उस घर को उम्र सजाने में गुजर गई। नमस्कार, आज मैं समृद्धि आप सभी की समक्ष नारी सशक्तिकरण के विषय पर अपने विचार रखना चाहती हूँ। माना गया जैसे बहुत सदियों से आज वो सब पर भारी है कि माना गया जैसे बहुत सदियों से आज वो सब पर भारी है। दवा हाजिर पैरों तले आज इंसाफ का वारी है। आंखें चुराना छोड़कर आंखें उठाकर चलना जारी है कि आंखें चुराना छोड़कर आंखें उठाकर चलना जारी है। जो बहा रक्त अपने शरीरों से उसे दो चार दरिंदे क्या भारी है। संस्कृति संभल कर रखने वाली, परिवार को जोड़कर चलने वाली, सम्मान करो तुम उसका, सम्मान करो तुम उसका। हर घर एक नारी है, हर घर एक नारी है, हर घर एक नारी है। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। मेरा नाम कृष्णा प्रियदर्शिनी है। मैं कक्षा 4 में पढ़ती हूँ। मैं आज एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में कुछ बोलना चाहती हूँ। हमारी जन्मभूमि भारत एक महान देश है। इस देश की मिट्टी ने बहुत से महापुरुष को जन्म देकर अपने नाम का सार्थक बनाया है, लेकिन भूतपूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम अलग है। इनका पूरा नाम अब्दुल पाकीर जैनुल अब्दुल कलाम है। इनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 मसीहा तमिलनाडु के रामसेबरम में एक मुस्लिम परिवार में हुआ था। भारत को शक्तिशाली बनाने के लिए उन्होंने पृथ्वी और अग्नि नाम की मिसाइलों का निर्माण किया था। वर्ष 2002 से 2007 तक भारत के 11वें रूप के
राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने देश सेवा की थी। वो एक लोकप्रिय राष्ट्रपति थे। 27 जुलाई 2015 को शिलांग में विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए दिल का दौरा पड़ने से 83 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। उनके महान कामों और योगदान के लिए उन्हें पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न आदि सम्मानों से सम्मानित किया गया। मैं भी बड़ी होकर अब्दुल कलाम के जैसे ही बनूंगी। धन्यवाद। एक बार एक बूढ़े आदमी उनके बहू, बेटे और पोते के साथ रहते थे। उनका हाथ बहुत जोर से कांपता था, इसीलिए वो जब भी खाने के लिए बैठते थे उनके खाना गिर जाता था। इसीलिए उनके बहू ने उनको एक मिट्टी के कटोरे में खाने के लिए दिया। उस मिट्टी के कटोरे भी गिरकर टूट गया। इसीलिए उनके बहू ने उन्हें एक किचन के कर्नर पर बैठाकर एक ऊँट के कटोरे में खाने के लिए दिया। उनके पास उनके पोते ने कहा, उनके पास कुछ बना रहे थे। उन्होंने उसको पूछा, क्या कर रहे हो? उनके पोते ने कहा, कुछ नहीं दादाजी, मैं बस एक कटोरे बना रहा हूँ। जब मेरे मम्मी पापा आप जैसे बन जाएंगे मैं उन्हें इस कटोरे में खाने के लिए दूंगा। उसका मम्मी पापा वहाँ आ रहे थे, उन्होंने सुन लिया। उस दिन से उन्होंने उस बूढ़े आदमी को उनके साथ खाने के लिए दिया। थैंक यू। Good morning, Principal Sir, teachers and my dear friends. Myself Abhalimbar, Standard 4. Poem name is हम भारत के बच्चे हैं. Let's start poem. हम भारत के बच्चे हैं, आगे बढ़ते जाएंगे. हम भारत के बच्चे हैं, आगे बढ़ते जाएंगे. आए सो तूफान सामने, आए सो तूफान सामने, रोकना हमको पाएंगे, रोकना हमको पाएंगे. हम भारत के बच्चे हैं, आगे बढ़ते जाएंगे. हम भारत के बच्चे हैं, आगे बढ़ते जाएंगे. हमको ना समझो नन्हे मुन्ने, हमको ना समझो नन्हे मुन्ने. हम साहस के पुतले हैं, हम साहस के पुतले हैं. हम भारत के बच्चे हैं, आगे बढ़ते जाएंगे. हम भारत के बच्चे हैं, आगे बढ़ते जाएंगे. हमसे जो भी टक्कर लेगा, हमसे जो भी टक्कर लेगा, उसे हम सबक सिखाएंगे, उसे हम सबक सिखाएंगे. हम भारत के बच्चे हैं, आगे बढ़ते जाएंगे. हम भारत के बच्चे हैं, आगे बढ़ते जाएंगे. थैंक यू. समय प्रातः, मेरा नाम है सुदेशना साहू. मैं कक्षा 4 में पढ़ती हूँ. मैं आज एक स्टोरी पढ़ने वाली हूँ जिसका नाम है चतुर खरगोश. एक जंगल था, उसमें विभिन्न जानवर रहते थे. वो जंगल का राजा शेर था. शेर सबको मारकर खा जा रहा था. जानवरों ने एक सभा बुलाई. वो सब ने बोले कि शेर हमको खा जा रहा है, हम क्या करेंगे? तभी खरगोश ने बोला कि हम शेर को हम खाना देकर आ जाएंगे. ऐसे ही हुआ. एक दिन खरगोश का पाली आया. खरगोश खाने देर लगा दी. खरगोश नहीं खाना लेकर गई. शेर ने बोला कि मेरा खाना कहाँ है? खरगोश ने बोला कि जंगल के दूसरे राजा छीन कर ले गए. शेर ने बोला, दूसरे राजा? मैं तो जंगल की राजा हूँ, मैं तो जंगल की राजा हूँ. वो कहाँ पर रहता है? खरगोश ने बोला कि आइए दिखाता हूँ. वो वही नदी में रहता है. शेर ने बोला कि
करते हैं मेरी लड़की होने पर, कई सवाल जवाब करते हैं मेरी लड़की होने पर, इसीलिए आज कुछ सवाल और जवाब मेरी तरफ से। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम Nilanshi Penda from Standard 4 Section B. Today represents a poet about women employment. So let's start. हाँ मैं एक नारी हूँ, हाँ मैं एक लड़की हूँ, हाँ मैं एक नारी हूँ, हाँ मैं एक औरत हूँ। मेरा होना मेरा गर्व है, मेरा अस्तित्व ही मेरा घर है। लेकिन ये समाज की संकीर्ण मानसिकता और उसी मानसिकता का शिकार यहाँ के लोग। अरे कई सवाल जवाब करते हैं मेरी लड़की होने पर, कई सवाल जवाब करते हैं मेरी लड़की होने पर, इसीलिए आज कुछ सवाल और जवाब मेरी तरफ से। क्या इस समाज को आवाज सुनाई नहीं देती उस छोटी सी मासूम से बच्चे की जो अपनी माँ के गर्भ में अभी भी चीख कर रो कर बोलती है कि माँ मुझे भी बाहर आना है, मुझे भी इस दुनिया को दिखना है, मुझे भी माता पिता का नाम रोशन करना है। क्या इस समाज को उस लड़की की चीखें नजर नहीं आती जो अपने आप को ये दिन के उजालों में भी सुरक्षित महसूस नहीं करता है? क्या इस समाज को उस लड़की की चीखें नजर नहीं आती जिसके सिर्फ ना कहने पर उसके चेहरे पर तेजाब डाल दिया जाता है? ये समाज कई सवाल जवाब करता है मेरे लिए, ये समाज कई सवाल जवाब करता है मेरे लिए। लेकिन आज सवाल ये नहीं है कि कौन मुझे बताने जा रहा है, क्योंकि समाज की पुरानी आदत है यूँ बताने की कि तुम लड़की हो, तुम नारी हो, तुम औरत हो। I am a girl, I am a woman and I am a victim। ये समाज कई सवाल जवाब करता है मेरे लिए, ये समाज कई सवाल जवाब करता है मेरे लिए, लेकिन आज कुछ सवाल और जवाब मेरी तरफ से। सुप्रभात मेरे प्रिय मित्रों एंड शिक्षक शिक्षयित्री, मेरा नाम है मान्यता साहू, कक्षा 4। मैं आज आपके सामने एक कविता बोलने जा रही हूँ जिसका नाम है तुम मुझको कब तक रोकोगे। सुप्रभात मेरे प्रिय मित्रों और शिक्षक शिक्षयित्री, मेरा नाम है मान्यता साहू, कक्षा 4 का छात्र। मैं आज आपके सामने एक कविता बोलने जा रही हूँ जिसका नाम है तुम मुझको कब तक रोकोगे। मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भरकर जेब में आशाएं, मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भरकर जेब में आशाएं, दिल में है अरमान यही कुछ कर जाए। तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। मैं उस मिट्टी का वृक्ष नहीं जिसे नदियाँ ने सींचा है, मैं उस मिट्टी का वृक्ष नहीं जिसे नदियाँ ने सींचा है। बंजर मिट्टी से पलकर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है, मृत्यु से जीवन खींचा है। मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूँ, मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूँ, शीशों से कब तक तोड़ोगे। लिखने वाला मैं नाम नहीं, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। इस जगह में जितनी जल नहीं उतने सहने की ताकत है, इस जगह में जितनी जल नहीं उतने सहने की ताकत है। तारों के भी शोर में रहकर सच कहने की आदत है, सच कहने की आदत है। झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ अब फिर झुकने का शौक नहीं, झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ अब फिर झुकने का शौक नहीं। अपने ही हाथों से रजा स्वयं, तुमसे मिटने का खौफ नहीं, तुमसे मिटने का खौफ नहीं। तुम हालातों की भट्टी में जब जब मुझे झलोगे,
तुम हालातों की भट्टी में जब जब मुझे छगोगे तब तक का सोना बनूंगा मैं। तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। धन्यवाद। Morning everyone, respected principal, teacher, parents and all my dear friends. I am Subhasmita Panda of class 4 in Dharmasala Public School. गर्व है मुझे, मैं नारी हूँ, अकेले ही सब पर भारी हूँ। तोड़ के हर पिंजरा जाने कब मैं उड़ जाऊंगी। चाहे लाख बिछा लो बंदी से, फिर भी दूर आसमान पे अपनी जगह बनाऊंगी। हाँ गर्व है मुझे, मैं नारी हूँ, अकेले ही सब पर भारी हूँ। भले ही परंपरावादी जंजीरों से बांधे है दुनिया के लोगों पैर मेरे, फिर भी उन जंजीरों को तोड़ लाऊंगी। मैं किसी से काम नहीं, सारी दुनिया को दिखा लाऊंगी। हाँ गर्व है मुझे, मैं नारी हूँ, अकेले ही सब पर भारी हूँ। थैंक यू। सुप्रभात यहाँ उपस्थित सारे शिक्षक शिक्षयित्री को मेरे ओर से प्रणाम। मैं पूज्यरानी ओझा हूँ। मैं धर्मशाला पब्लिक स्कूल की 6ठी कक्षा की छात्री हूँ। हम आज स्वाधीनता दिवस के बारे में एक छोटी सी हिंदी की कविता बोलना चाहती हूँ। प्यारा प्यारा मेरा देश, सबसे न्यारा मेरा देश, दुनिया जिसे पर गर्व करे, ऐसा सितारा मेरा देश, ऐसा सितारा मेरा देश, चांदी सोना मेरा देश, सफल सोना मेरा देश, गंगा जमुना की माला का फूल वाला मेरा देश, आगे जाना मेरा देश, नित नए मुस्कान मेरा देश, इतिहासों में बढ़ चढ़ कर नाम लिखा है मेरा देश। प्यारा प्यारा मेरा देश, सबसे न्यारा मेरा देश। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू। सुप्रभात दोस्तों, मेरा नाम साहित्य राउत, मैं कक्षा 4 में पढ़ती हूँ। आज मैं आपको एक कविता सुनाने वाली हूँ। इस कविता का नाम है सब पंछी सुख से रह पाते। जोर जोर से शोर शोर से आंधी आई सभी ओर से, डाले टूटे अंडे फूटे, चिड़िया के सपने भी टूटे। जिससे कहेगी मन की बैठक, चुप रहकर इस दुख को सहती। मैंने जब इस खिड़की को खोला, आजा आजा प्यार से बोला, डरी डरी और ची ची करती, आंसू से आंखों को भरती। कैसे कहेगी मन की बात, चुप रहकर इस दुख को सहती। मैंने जब चिड़िया का दुख देखा, मन ही मन मैंने सोचा, काश पेड़ घर में उगता, दिन भर पंछी नीड बनाते, कभी ना कोई आंधी आती, सारे पंछी सुख से रह पाते। धन्यवाद। Morning all of you. My name is Ayush Khanda from class 6 section A. So I am represent poem. भारत वर्ष से सबसे प्यारा, सब देशों से बढ़कर न्यारा, सुंदर मुकुट हिमालय इसका, सागर चरण पखारे, गंगा यमुना पावन नदियाँ बहते जिसके जल के धारे, भांति भांति अन्न फूल फल औषधियाँ और रत्न जवाहर, श्रम करते दिन रात खेती और व्यसित होके ध्यान उगाकर, भारत माता हम तेरे सूत, सदा तुम्हारा मान करे, पालन करती हो हम सबका, सदा तुम्हारा मान। मेरा नाम नयनिका गिरी है और मैं कक्षा 6 में पढ़ती हूँ। मैं आज आप सभी को एक छोटी सी कविता सुनाने जा रही हूँ। ना जाने कितने वीरों ने अपनी जान गंवाई थी, तब जाकर मेरे भारत ने सही स्वतंत्रता पाई थी। ये धरती हमारी थी, आकाश हमारा था, पर ब्रिटिश के शासन में कुछ भी ना हमारा था। मंगल भगत आजाद सबने लड़ी लड़ाई थी, तब जाकर मेरे भारत ने सही स्वतंत्रता पाई थी। एक समय था जब ये भारत सोने की चिड़िया कहलाता था, यही देखकर इसे विदेशियों ने हर बार हथियाना चाहते थे। अंग्रेजों के छक्के छुड़ाकर रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी जान गंवाई थी, तब जाकर। Respected principal sir, teachers and my dear friends, my name is Prerana Sahu from class 4. I am standing here to say something about tree. बड़े उपकारी है पेड़, माँ सम्मान है
हैं पेड़, कितने सुंदर लगते हैं पेड़, फलना अपना खाते हैं पेड़, आम अमरूद सेब नारंगी फलों की खान है पेड़, पत्थर भी जब खाता है पेड़, बदले में फल देता है पेड़, प्रकृति का वरदान है पेड़, प्राण वायु का खजाना है पेड़, हरियाला करता है पेड़। My name is Halima Khatun from class 6. Today I am going to represent speaking about a Hindi poetry. The name of that poetry is मेरे भारत का स्वतंत्रता। ना जाने कितने वीरों ने अपनी जान गंवाई थी, तब जाकर मेरे भारत ने सही स्वतंत्रता पाई थी। ना जाने कितने वीरों ने अपनी जान गंवाई थी, तब जाकर मेरे भारत ने सही स्वतंत्रता पाई थी। ये धरती भी हमारी थी, आकाश हमारा था, ये धरती भी हमारी थी, आकाश हमारा था, पर अंग्रेज़ों के शासन पर कुछ भी न हमारा था। मंगल भगत आज़ाद सबने लड़ी थी लड़ाई, तब जाकर मेरे भारत ने सही स्वतंत्रता पाई थी। एक समय था जब भारत सोने की चिड़िया कहलाता था, एक समय था जब भारत सोने की चिड़िया कहलाता था, यही देखकर अंग्रेज़ों हर बार हथियाना चलाते थे। अंग्रेज़ों के छक्के छुड़ाकर लक्ष्मीबाई ने जान गंवाई थी, तब Good morning everyone, myself Amrita Yadav, standard 6 section B. I represent today's Hindi poetry. The poetry name is सफलता का मंत्र। केवल इच्छा करने से ही काम कहाँ पूरे होते हैं, केवल इच्छा करने से ही काम कहाँ पूरे होते हैं, कभी इच्छा से मंजिल मिलती, कभी इच्छा से मंजिल मिलती, सपने कब पूरे होते हैं, सपने कब पूरे होते, लक्ष्य साध कर आंखों में तुम सबसे नहीं घबराना सीखो, चाहो यदि पर्वत चोटी पे तुम भी अपना ध्वज फहराना, सागर तैसे मोती लाके चाहो अपना कंठ सजाना, विद्याओं से लड़कर पहले श्रम पथ पे बढ़ जाना सीखो, करते हैं दिन रात परिश्रम बिना थके हारे, देखो मजदूर चिट्ठी भी भोजन पाने को चल के जाती इतनी दूर, जीवन सफल बनाना है तो जीवन श्रम का मात्र दोहराना सीखो। धन्यवाद। Good morning, respected principal sir, teachers and my dear friends. I am Shanshu Jaina of standard 6. I recite a poem on Hindi. भारत वर्ष से सबसे प्यारा, सब देशों से बढ़कर न्यारा, सुंदर मुकुट हिमालय इसका, सागर चरण पखारे, गंगा यमुना पावन नदियाँ बहते जिनके जल के धारे, भांति भांति के अन्न फूल फल औषधियाँ और रत्न जवाहर, श्रम करते दिन रात खेती हर्षित होते धान उगाकर, भारत माता हम तेरे सूत, सदा तेरा गुणगान करे, पालन करती हो हम सबका, सदा तेरा मान करे। थैंक यू। मेरा नाम प्रदीप्त कुमार जना है और मैं कक्षा 6 में पढ़ता हूँ। मैं आज एक आपको पोएम बताने वाला हूँ। भारत वर्ष से सबसे प्यारा, सब देशों से बढ़कर न्यारा, सुंदर मुकुट हिमालय इसका, सागर चरण पखारे, गंगा यमुना पावन नदियाँ बहते जिसके जल के धारे, भांति भांति के अन्न फूल पर औषधियाँ और रत्न जवाहर, श्रम करता है दिन रात करती हर्षित होते धान उगाकर, भारत माता हम तेरे सूर, सदा तेरी गुणगान करे, पालन करती हो हम सबका, सदा तेरी मान करे। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं सत्यरंजन स्वाई हूँ। मैं कक्षा 6 में पढ़ता हूँ। आज मैं आप लोगों को एक पोएम के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसका नाम है भारतवर्ष से सबसे प्यारा। तो मैं शुरू करता हूँ। भारतवर्ष से सबसे प्यारा, सब देशों से बढ़कर न्यारा, सुंदर मुकुट हिमालय इसका, सागर चरण पखारे जिसका, गंगा यमुना पावन नदियाँ बहते हैं उनके जल के धारे, भांति भांति के अन्न फूल फल औषधियाँ और रत्न जवाहर, भांति भांति के अन्न फूल फल औषधियाँ और रत्न जवाहर, श्रम करते दिन रात खेतिहार, हर्षित होते धान उगा कर हो, हर्षित होते धान उगा कर, भारत माता हम तेरे